अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। कल का मैंने आपको दिखाया था कि रूम के लिए लेके आया था, लुकमान के लिए मंगवाया था। आप यहाँ पे ना जर्मनी में बहुत ज़्यादा ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਸ਼ਿਮਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਾਰਨਰ 'ਚ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਖਿੜਕੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ पूरा लुकमान ने अपना रूम जो साफ़ किया खुद ही, उसकी इतनी ज़्यादा लग जाती है ना, हर महीने बाद साफ़ करनी पड़ती है। ज़्यादा इसी के इसके कमरे में लगती है या मेरे कमरे में लगती है? मेरे कमरे में अब थोड़ी कम हो गई है। तो ये खोला है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੇ ਐਮਾਜ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਆਵੇ ਹੁਣ 100 ਯੂਰੋ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ 12 ਲੀਟਰ ਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਉਹ ਭਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇਗੇ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ 12 ਲੀਟਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਖੈਰ 12 ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 12 ਲੀਟਰ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਫਤਾਰੀ ਹੈ ਬੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚਿਕਨ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੜਾ ਛੱਡਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੱਟਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਿ ਪੀਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਸਕਿਨ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਚਿਕਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। 2 ਚਮਚ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵੇ, 2 चम्मच ऑयल जाएगा, 2 चम्मच लेमन जाएगा। और जो बटर चिकन का मसाला है ना पूरा, एक मैं किलो तकरीबन चिकन है तो वो मैं डाल के इसको मैरिनेट करके तकरीबन 2-3 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। मैंने कहा चलो आज मैं आधी जो है ना वीडियो आपके साथ आज शेयर कर देती हूँ, आधी मैं कल कर दूँगी। तो यहाँ पे पूरा चिकन का जो एक डब्बा है ना वो मैं डाल के, अच्छा बड़ियाँ ईजी रेसिपी ने है। देर आए दुरुस्त आए। मैं कभी बटर चिकन इन्ना शौक ना बच्चे खाते नहीं, लेकिन जो मैं ट्राई किया ना तो बच्चे खाना शुरू हो गए हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਨਿਹਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੱਗਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਘਰ ਕੀ ਨਾ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਕਰ ਲੂँਗੀ। तो ਮੈਨੂੰ ऐसी कि मैं जितनी वीडियो आज बना सकती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, छुट्टी ना हो जाए ना। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती कि डेली वीडियो अपलोड करूँ, छुट्टी हो जाए फिर बहुत ज़्यादा मुझे DM आप लोग करते हैं इंस्टा पे कि बाजी किधर रह गए हैं, वीडियो नहीं आई। क्योंकि मैं संडे को छुट्टी करती हूँ, सबको पता उस दिन कोई मैसेज नहीं करता, सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਖੈਰ मेरी कोशिश है ही कि चलो हाफ में आज वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, लैम ली है तकरीबन सारी, वो जो है ना वो हड्डी के बगैर ही है, लेकिन 1-2 बोटी मैंने हड्डी वाली रखी है। इसके अंदर सिर्फ मैंने ऑयल डालना है और ये पूरा पैकेट एक मैंने उल्टा के ना अंदर रख दिया। प्रेशर में इसलिए मैं मैरिनेट किया क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਲੱਗ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧੁੱਪਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਆਣੇ ਨਾ ਉਹੀ माशाल्लाह बड़ी बरकत होनी है। ना सुबह का करके रखा है मैरिनेट ये वाला लैम का, क्या कहते हैं इसको, निहारी का मसाला बस मैंने ऐड किया, ऑयल ऐड किया बस, और कुछ नहीं है। और सेकंड मैंने आपको बटर चिकन का मसाला लगा के रखा है ये। और यहाँ पे मैंने यखनी बना के रखी है चिकन की, पुलाव बनाना है। और ये मैंने दाल माश की बना ली है। बस जब सर्व करेंगे धनिया शनिया डाल लेंगे साथ। मैंने धनिया भी आज काट के रखा है। काम भी कर रही हूँ साथ साथ, माशाल्लाह किचन मेरा साफ हो रहा है। ये देखें किचन साथ मेरा साफ़ है। मशीन में अभी बर्तन लगाए हैं, हूँ बस है मैंने यही सी इसको मैं भून के ना इसको प्रेशर लगा दूँ, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकना है। इसका ना आहिस्ता आहिस्ता जैसे पकेगा उतना ज़्यादा मज़े का बना है। सारा जो ना हड्डी के बगैर एक हड्डी मैंने ऐड की है। बस ऑयल है अंदर, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसके बस बुनाई करूँगी। मैंने कहा सबसे पहले ना मैं साथ ना माश की दाल बना ली है,
उसकी मैंने क्या ही रेसिपी देनी थी, बस दाल बॉयल किया, मसाला बनाया, अंदर डाल लिया, पानी मैंने हल्का डाल के ना उसको छोड़ दिया है। मैंने कहा जब अफ्तारी का टाइम है उससे पहले फिर मैं इसको गर्म करूँगी, धनिया शनिया डाल के फ्रेश हो जाएगा। तो अभी निहारी के जो अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट के 2 मैं क्यूब्स डालनी है, बस उसको भूनते जाना साथ में ना थोड़ा सा, हालांकि मसाले के अंदर सारा कुछ है फिर भी मैंने वो धनिया और जीरे का पाउडर ने एक छोटू सा चम्मच मैंने डाल दिया। बस इनू हूँ तुसी भुनी जाना है ताकि ਇਹਦਾ कलर चंगी तरह चेंज हो जाए, क्योंकि बाद ਚ ਭੁੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੀ ਗਲ ਜੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੋਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਾਂਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਵਾਂ। ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ, क्योंकि मैंने ऐसी बिल्कुल फीती फीती भी ना होवे और बोटी बोटी जो है ना वो बस हाथ लगाए और टूट जाए, इस तरह का मुझे चाहिए। तो यहाँ मुझे लग रहा था गोश्त अच्छा तो बन गया। अब इसको सारे को मैं साइड पे कर लूँगी गोश्त निकाल के। तो बाकी शोरबे में ना मैं आटा जो है ना मैं भून के उसके अंदर डाल दूँगी। तुसी आटा भी डाल सकते हो, तुसी होर जड़ा की होया है मैनूं नाम नहीं आंदा है। कदी कदी यकीन करो ऐसे ईजी नाम ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ 2-3 ਚਮਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2.5 ਚਮਚ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਕ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪੱਕ ਜਾਏ। चले जी, यहाँ पे ना आटे की बड़ी ही प्यारी खुशबू, मैं दिल कसी विच देसी घ्यो पा के हलवे बना छड़ा, पर कम निबेड़ा हजे मैं आ स्वीट जो ना वो बेटी ने बनानी है, मैंने तो कोई नहीं बनानी। पुलाव भी शायद वही बनाए, मैंने उसके लिए ना वो यखनी वगैरह रेडी कर दी थी। मैंने कहा वो स्कूल से आके वो बना लेगी ना, कुछ वो चीज़ें बनाएंगे कुछ मैं बना लूँगी, तो मिल मिला के हमारी अफ्तारी रेडी हो जाएगी। बाकी मेन चीज़ें जो मुझे ये था फटाफट बना लूँ, बाकी शाम को कहता समोसे पकौड़े इस तरह की चीज़ें बनानी होती हैं। तो बस ए मेन होए साइड ते, तो बाकी केड्डा खलारा नहीं लगता। बस आटा मिक्स करना, फिर ही मैंने छाननी च छान के ना फिर मैं ऐड करना ताकि छोटे छोटे जो बीट्स है ना आटे के बिछा के जितना मर्जी मिक्स कर ले वो रह जाते हैं। देखना भी छान पूनी च कही ये आ जाएंगे। बस इन्हू चम्मच लाना वे तो बस 4 ਤੋਂ 5 मिनट हल्की अग ते ना इन्हू मैं पका लाँगी आटे नू। तो फिर जो मीट है वह मैं वापस ये पावांगी, तो इन्हू मैं पावांगी बाउल में। उस तो बाद मैं अलग ये तड़का भी लाना, थोड़ा प्याज का जिं बिरयानी लाई दा, बिरयानी का प्याज बनाई दा उस टाइप का मैंने तड़का लावांगी। मैनू लगता जिं थोड़े जे मेरे डार्क ब्राउन प्याज हो गए सन, लेकिन खैर टेस्टी बन गई सी ना। इनू हुण मैं बस मसाला लाना वे, तो मसाला के कहने तड़का लाना है। तो बाकी चीज़ां रेडी करांगे वो कल मैं इंशाल्लाह तुहाडे कंटिन्यू रखांगी वीडियो है, इत्थे ही रहो जाओ ना किते तो बस तड़का लावांगी तो जदों सर्व करांगी ना उदों बस थोड़ा जिहा मैं उत्ते ना की कहंदे ने फ्रैश धनिया मैं अज कट के रखिया सी वो पावांगी। तो मेरी इन्नी मज़ेदार जिहड़ी ना निहारी तैयार हो गई, बड़ी ईजी रेसिपी सी। तो मैं कहा चलो मैं तुहाडे नाल शेयर कर दवां। तो रमज़ान का महीना है तो ज़रूर दुआं च याद रखियो। कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।